The basics. In basics, we have these 11 topics, that is introduction to OS, types of OS, functions of OS, real-time system and its task. The most important question that you can see on the screen is difference between multitasking, multi-threading and multiprocessing. Then a very childish or a kind of topic that you have been studied so far, the types of computer memory that are RAM and ROM. Next, the most important question, we can't say it most important, but it's a very silly question, a kind of important also, by defining the difference between the 32-bit and a 64-bit operating system. Next, what happens when we turn on a computer? Basically, we will see the process or what will happen whenever you turn on your computer. Then we have a boot block, and then we have a UEFI and how it is different from BIOS. So this is a basic guideline of this basics of operating system part. Basically, we have different parts in this also, but in the basics of operating system, we will cover these topics that are in the basics of the operating system. So whenever we talk about the introduction to operating system, rather than defining the defining the operating system, that what is basically an operating system, I would like to make it clear by drawing a diagram. So basically, this is our computer hardware. This is my computer hardware. You can say the computer internal part. Okay. And it is your programs. You can say system and एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, कंप्यूटर को कमांड करते हो कि हाँ ये करो वो करो, या फिर आप कोई भी मान लो जैसे कि कोई भी C++, जावा, पाइथन, PHP कोई भी करते हो, तो ये आपका प्रोग्राम या कोई भी जो सिस्टम के एप्लीकेशन होंगी वो यहाँ पे होंगे. अब इसको कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ नथिंग बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेसिंग प्रोवाइड करे, दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यहाँ पे आपके यूज़र्स भी हो सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4. ये आप चाहे टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट एडिट के लिए आप कमांड दे रहे हो, चाहे आप कंपाइलेशन के लिए कमांड दे रहे हो कंपाइलर के थ्रू, चाहे आप डेटाबेस सिस्टम को कमांड कर रहे हो, और एनी असेंबलर. तो दिस इज़ अ बेसिक लेआउट कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है और कैसे वो इंटरफेसिंग करेगा, मतलब क्या उसका रोल होता है किसी एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. ओके, तो अब एक अगर इसकी मैं फॉर्मल डेफिनेशन आपके सामने रखूं, तो डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे, तो कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है. An operating system is a program that control the execution of application program and act as an interface between user of a computer and computer hardware. मैं लिख देता हूँ. तो ये इसकी डेफिनेशन है. An operating system is a program that controls execution of application program and acts as an interface between user and computer hardware. Now we will moving that what are the basic tasks that every operating system must support. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये टास्क तो होंगे ही होंगे. तो इन टास्क के बारे में अगर हम बात करें तो वो टास्क क्या है, प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ टू क्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा फाइल यूजिंग एन एडिटर. फॉर एग्जांपल, आपको भी मैंने पीछे एक डायग्राम जो दिखाया था, उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि यूज़र इज़ एक्सेसिंग टू टेक्स्ट एडिटर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट फैसिलिटेट टू क्रिएट मॉडिफाई प्रोग्राम्स यूजिंग एन एडिटर. Now let's move on to the second point, that is access to the compiler for translating the user program from high level language to machine language. So for example, अगर आपके पास कोई भी कंपाइलर है, आपने यूज़र 2 में क्या देखा था, कंपाइलर को कर सकता है. कंपाइलर बेसिकली क्या काम करता है, हाई लेवल प्रोग्राम
को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में, यानी कि फॉर ट्रांसलेटिंग द यूज़र प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, उसके लिए कंपाइलर का एक्सेस होना चाहिए ज़रूर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सपोर्ट द कंपाइलर ऑल्सो. Next, we have provide a loader program to move the compiled program code to computer memory for execution. प्रोग्राम बना लिया, कंपाइल कर लिया, एडिट कर लिया, अरे भैया अब जब वो मेमोरी में लोड ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा. तो इट मस्ट सपोर्ट अ लोडर प्रोग्राम टू मूव द कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड टू कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड द रूटीन दैट हैंडल द डिटेल्स ऑफ एन IO प्रोग्राम. IO प्रोग्राम क्या हो रहा है, कौन सी की प्रेस करी, कौन सा कर्सर मूवमेंट हुआ, तो उसके रूटीन को हैंडल करने के लिए भी हमारे पास IO प्रोग्रामिंग एडिटर. So guys, thanks for watching. If you have any doubt, please ask them in a comment section, and in the next video we will cover types of operating system.